our today's speaker, Dr. Anil Kumar Dikshit sir, has joined the session. So, Thank you, ma'am. Good morning. good morning, sir. How are you doing today? Very nice. And this is a great pleasure to me that I am engaging this Saturday day with the students of yours, and I am very much happy that you have invited me for this. And the topic which you have given, this is very nice. And during the time of the course, I will tell that very few institutions or the principal or head of the department go with this side. And because in today's scenario, when we talk about the legal rights and health, so this is the thing that the student of the nursing should know, that what is the law with respect to. So very much thank you, Manisha ma'am. Yeah, most welcome. So let me introduce sir first. So actually he is Professor Anil Kumar Dikshit. He is from Law College, Dehradun, Uttaranchal University, Dehradun. And as his academic teaching experience, he's having 32 years of teaching experience as a guest lecturer in Bundelkhand Degree College, Jhansi from 1992 to 2002. As Assistant Professor of Law of BJJR Institute of Law, Bundelkhand University, Jhansi from 2002 to 2011. As he has authored many books, and he has published many of the articles in Scopus and like other international journals. And regarding his refresher course, he has completed online 2-week refresher course on law in contemporary times with grade A, organized by Teaching Learning Center, Ramanujan College, University of Delhi from 27 January to 10th February 2022. So it's over to you, sir. Thank you, ma'am. You're most welcome, sir. Welcome to all of the nursing students, I can say professionals in this. The topic which ma'am has gave me, that talks about the more explanation or relating to the nursing negligence. Today, this is one of the major, because there are many of the legislations which talk about the negligence. Negligence is not a criminal word, but it is an English word which has been taken in the legal scenario also. When we talk about, we will go through with the provisions of the, because in 2023, new law was being framed, replacing Indian Penal Code with Bharatiya Suraksha Samhita and BNSS and Evidence Act BNSS. So the very first thing, that what is negligence in nursing? When we, ma'am, sir, I will share. Yes, sir. Are you sharing or shall I share the screen, sir? You share it. You share it. Yeah, sure, sir. I'll do it right now. हम कर देंगे. Yeah, I'll go down. Yes, sir. You can continue, sir. Yes. It's visible, sir. Yes, it is visible. It is visible. Okay, sir. So when we talk about the negligence in nursing, it is defined that the intention is not modified, but the act which is being done by the nursing staff, which fails to reach out the professional target with the unintentional harm or the injury, and that caused the injury, whereas the intention was not modified, and it's maybe in the form of medication error, it may be in the form of failure to mentor, it may be in the form of poor communication, it may be in the form of duty of careless duty, breach of duty, which causes into damage. So these are the things which are being taken as a negligence with respect to the negligence in nursing or negligence in the hospital, or negligence with respect to the. You very well know that when any of the prescription is been given, the word RX is being mentioned by the nursing also, by the doctor also, by the. That RX means it is a kind of order which the person who is he is giving to the subordinate or the other method, that he is bound to follow the direction.
If the doctor is using the word RX and he is prescribing the medicine, then it is the legal order which has been given to the nursing staff or to the that patient, that he has to take the tablet as prescribed by the prescription. So that's why the word RX is a legal word, and it should be interpreted in a legal manner. And that's only the law also recognizes it. So careless duty, failure to monitor, poor communication, that causes with the damage. Eco reawaz. That is the kind of, when we talk about negligence. Ma'am, can we proceed to the next one? Yes, sir, sure. So when we say that negligence is a general failure to exercise by any of them, with the when we talk about that, it is the unintentional. So, and this is the profession. Nursing is a profession. It is a very I can say that any kind of breach or any kind of negligence gives a grave result, and even the life of the person can also be. So that's why this has been covered under the provisions. Can we proceed, ma'am, further? Further, okay, sure, sir. Yeah. So when we We'll see some examples. yes. So when we see that, yes, then negligence in which area? Negligence can be in the field of the surgery. When any of the surgery is being made, the law says that the doctor makes the surgery, but all the aspects that is being shared by that is being helped, the basic person who is left and right with the doctor, that is the nursing staff. So that incorrect surgery is being made, it may be happen not by the negligence of the doctor, but by the negligence of the nursing staff. If any of the foreign object is being left in the body, that comes into the field of negligence. Any foreign object, infection caused by the poor hygiene, that thing also come on the part of the nursing. That doesn't come in the part of the because these are the things which are being by the eye of the law. These are the duty of the nursing staff to maintain the hygiene. And if by of the poor hygiene, if any infection is occurred, forgot to inform patient for the risk involved, because what direction has been given from one medicine to the other medicine. If the doctor has said that the medicine will be given after the 3 years, 3 hours time break, so that is the information. And if any of the misinformation or the information is been forgotten, when we say right to forget is not involved with respect to the hospital or with respect to the nursing staff. That comes into the negligence. If any of the said that all of the chance, because of the pressure and because of the workload, we have forget, that comes into the negligence. Then incorrect anesthesia amount. So these are the certain examples which the law of the land, Indian Constitution, talks about the negligence with respect to the nursing, with respect to the hospital. Now we come to the legal field. That is the topic has been given to me. That is courtroom simulation for the nursing negligence. What does the law say? Basically, when we talk negligence, we have discussed, then duty of care. Care is very much important with respect to the nursing staff and hospital. Then breach of duty. If any of the duty is been breached, then caution. And when we talk about the other is, that is the damage.
any damage by any of these, it may be of the negligence, it may be in the cause of the breach of duty, it may be the cause of the miscaution, any damage which has been come. And one thing I want to express here, that law of tort also applies here. Law of torts, this means that a civil wrong and criminal wrong, both the things apply with respect to the hospital, negligence of hospital. Criminal law lies that the thing has been made if there is intention. Civil wrong means that if any loss has been made, what will be the damages to be given not only to the victim, but to the persons who are dependent to the victims. If by any of the laws the patient expires, that is a criminal negligence. But civil negligence means that the laws which the independents are bearing. If any of the husband has been died, brother has been died because of the negligence, then the family also loses. And they are the dependent. So this means civil wrong. And civil wrong is also comes into the subject of torts. Same as of the law of the accident. If any of the road accident, if any of the car hits a person and the person dies, this means that the doctor will be penalized for the reckless driving and 304 IPC. But because of that death, the dependents of that person, they will be provided compensation. So this will not be treated as a jeopardy. The two judgments of a single case, this thing doesn't come into the law of the jeopardy. This comes into the law of the torts. And in this also, nursing negligence also, this thing comes that both the law will apply at the same time. If there is any of the law punishment, along with the compensation which has been given to the dependent of that victim. So damage is being interpreted by the court in this manner. Can we proceed to the next slide, ma'am? Now, what will be the procedure? That is the main point which the student of nursing should understand. Because law is not so much confusing. But basic cheese is that the person should know that how the court runs with respect to these kind of cases. When we enter to the court, even the new law, Bharatiya Nyaya Sakshya Sanhita BNSS, chapter 25 talks about the evidence in the matter of inquiry and trial. Inquiry means the inquiry which has been made by the authority in any of the negligence matter. And trial means the trial which has been made in the court in any of the matter of the negligence. We are talking here with respect to the trial. So how the evidence in the matter of negligence is being run as a trial in the court. So the top authority in that courtroom, the top authority is the judge. Then two people are from the field of the law. One is the public prosecutor. Public prosecutor means in India, who is the victim. This is the duty of the state because the fundamental right to live, that is the fundamental right. If any of the right has been violated, the liability is being taken by the state. So the assistance is being given by the state to that victim by the public prosecutor. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब जिसे हम सामान्य भाषा में हम कह देते हैं सरकारी वकील. तो सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो कि विक्टिम की तरफ से कोर्ट में विक्टिम के हित के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए स्टेट की तरफ से उसको प्रोवाइड किया जाता है. एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. देन अनदर इज द डिफेंस लॉयर. डिफेंस लॉयर क्यों आ गया? क्योंकि एडम ऑल्टम पैटम आपने सुना होगा, नेचुरल जस्टिस है, राइट टू बी हर्ड.
तो जो भी वहां पर जिसके भी खिलाफ चार्जेस लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर हम अगर नर्सिंग की अगर बात करते हैं, तो जिस नर्स के खिलाफ भी चार्जेस लगाए गए हैं उसको भी राइट टू बी हर्ड दिया जाएगा, और उसकी बात को रखने के लिए जो काउंसिल होगा हम उसे कहते हैं डिफेंस लाइन. सो दीज आर द टू लीगल पर्सन who present their cases in the court in the matter of negligence. Then the third one, accused nurse against whom the charges has been fixed related to the negligence. Negligence के हम अगर सेक्शन अगर देख लें तो वो फिर आ गया 304B IPC के एंड BNSS, वो मैं आगे आपके चलूंगा. Then who are the witness? Because generally negligence, the person whose act is being negligent, law said or other will not be punished. So if that during inquiry this thing has been come out that the nurse was liable for negligence, then doctor will not be punished, but the doctor will be made as a witness. So doctor is the witness and he is being appeared in the court by the public prosecutor, that he will decide, he will on the statement, written statements of the doctor. And one legal thing, that the statement of the doctor as a witness in the court will be in a written form by the magistrate. He will dictate any of the things which is being relevant with respect to the incident, but he has to deliver those statements as a witness on oath. हमारे यहाँ पर इंडियन लॉ में शपथ को, कसम को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. इसीलिए जब भी कोई विटनेस डॉक्टर कोर्ट में आएगा उसको पहले शपथ लेनी पड़ेगी कि वो जो भी अदालत में कह रहा है वो सच कह रहा है. आपने देखा होगा कि एफिडेविट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफिडेविट एंड डिक्लेरेशन? द ओनली लीगल difference is the oath. If any declaration is being made on oath, that is a affidavit, and if any declaration is being made without oath, it is a general declaration. तो यहाँ पर जो डॉक्टर एज अ विटनेस है वो कसम खाकर शपथ लेकर अदालत में, आपने देखा होगा कई फिल्मों में भी आता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, गीता के ऊपर हाथ रख के. नाउ वी आर अ सेकुलर कंट्री, लेकिन उसके बाद भी सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है दैट वी डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन. सेकुलर का मतलब होता है वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. हम अमूमन एक भाषा में कहते हैं सेकुलर का मतलब नो रिलीजन, नहीं, सेकुलर का मतलब है वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. द स्पिरिट ऑफ एवरी रिलीजन इज बीन रिस्पेक्टेड बाय एवरी पर्सन. ही मे बी बिलीवर ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन, but no person has got any right to criticize the other religion. I am a Hindu, I have got no right to criticize Islam, Christianity or any other thing. तो यहाँ पर जो ओथ ली जाएगी वो डॉक्टर जिस फेथ, रिलीजन क्या है? रिलीजन इज नथिंग बट मेयर फेथ. फेथ है उसके ऊपर, तो उस का ओथ लेके he will give a statement and the statement will be written by the magistrate, and when the statement has been recorded, that doctor will sign the document and the magistrate will sign. Then the family members, negligence में family members are also the witness. family member क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पर आ गया लॉ ऑफ टॉर्ट. डैमेज किसको हुआ है? तो डैमेज हुआ है उनके इंडिपेंडेंस को, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं. फैमिली मेंबर का मतलब ये होगा दो डिपेंडेंट्स, उस विक्टिम के जो डिपेंडेंट हैं, वाइफ है, भाई है, जो भी डिपेंडेंट है, उनका विटनेस होगा. वहां पर उनको ये साबित करना है कि इनके लॉस से हमें ये फाइनेंशियल लॉस हुआ है. देन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लाइबिलिटी नर्स पे आ रही है कि लाइबिलिटी पूरे हॉस्पिटल पर आ रही है, ये बहुत टिपिकल चीज हो जाती है. इसलिए वहां पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इवन डॉक्टर सेड आई हैव गिव द प्रिस्क्रिप्शन, सारी चीजें थी. हॉस्पिटल ने क्या कहा? हमने सब चीजें प्रिस्क्राइब करा रखी हैं, ऑपरेशन थिएटर बढ़िया है, बाकी सारी चीजें हैं, दवाइयां हैं, हर चीजें. तो जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे बाकी का जो स्टाफ है अनहाइजीनिक कंडीशन की जैसे आ जाती है, उनकी भी एविडेंस कलेक्ट की जाएगी. और ये सारा काम कौन करेगा? वो करता है कोर्ट क्लर्क. उसको कहते हैं कोर्ट क्लर्क. हिंदी में हम कहीं पर कह देते हैं पेशकार और कहीं कहीं पर हम उसको कह देते हैं रीडर.
Court clerk write the statement, court clerk maintain the file, court only, court clerk give the oath. शपथ कौन दिलाएगा डॉक्टर को? कोर्ट क्लर्क दिलाएगा. So this is the legal position in the court. और उसी में जब हम अगर बात करते हैं, what will be the language of the court? तो सेक्शन 307 of BNSS वो ये कहता है कि language of the court will be decided by the state. If in देहरादून any case है यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो देहरादून की स्टेट ने कोर्ट की लैंग्वेज दो डिसाइड की है, इंग्लिश एंड हिंदी. अगर मान लीजिए कोर्ट, मान लीजिए महाराष्ट्र में है कोई कोर्ट, तो महाराष्ट्र में कोर्ट की लैंग्वेज होगी इंग्लिश एंड मराठी. मान लीजिए तमिलनाडु की कोर्ट है, तो तमिलनाडु के स्टेट ने, क्योंकि लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, तो तमिलनाडु में मान लीजिए उन्होंने जो है इंग्लिश किया हुआ है, उसके साथ उन्होंने एक अपनी कोई लैंग्वेज जो है तेलुगु या तो वो करता. लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट. अब मान लीजिए दिक्कत क्या आ गई कि इफ एनी ऑफ द डॉक्टर है, वो यहाँ पर है, पोस्टेड है इन देहरादून, बट ही डजंट नो हिंदी, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि अगर लैंग्वेज को लेकर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इंटरप्रिटेटर को वहां पर कोर्ट बुला सकती है एंड ही विल इंटरप्रिटेट एंड ऑल द प्रोसीडिंग. दिस इज द सेंस ऑफ सेक्शन 307 ऑफ BNSS. ये अभी जोड़ा गया है नए एक्ट में कि कोर्ट की लैंग्वेज कौन होगी, और क्योंकि ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग होगी, यानी एक्यूज मौजूद रहेगी, एक्यूज जिस भाषा को समझ रही है उस भाषा में एविडेंस के, डॉक्टर का स्टेटमेंट, हॉस्पिटल का स्टेटमेंट, वो जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनका स्टेटमेंट को एक्यूज को समझाया जाएगा बता के उसकी लैंग्वेज में. एंड ऑल दोज थिंग दैट इज द ड्यूटी ऑफ द जज. ओपन कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि खुले दरवाजे में हो रही है. ओपन कोर्ट का मतलब है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो एक्यूज को समझ में आ रही हैं, डॉक्टर ने क्या बोला, तो वो लैंग्वेज को लेकर जो आती है. मैम, कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. Yeah. Then it comes, ये आ गया, how the court will open. कैसे चीजें शुरू. तो ये तो हो गया जो हमने आपसे अभी बात किया. अब हाउ द प्रोसीडिंग विल मूव. यू जस्ट इमेजिन, आप एक अपने परिकल्पना में आप एक कोर्ट को, जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, सामने जज बैठे हुए हैं, बगल में रीडर बैठे हुए हैं. अब चीज कैसे शुरू होगी, ये तो हो गया पूरा पार्ट कि उसमें मेजर प्लेयर्स कौन कौन हो गए, जज से लेके कोर्ट क्लर्क, ये पूरे 6-7 जो है, दे आर द मेजर प्लेयर्स ऑफ द कोर्ट. Then how the court will move. First thing, when the case is being made before the court, ओपनिंग कोर्ट में कैसे चीजें आएंगी. सबसे पहला काम, जज, कोर्ट क्लर्क विल बी इन द कोर्ट, एक्यूज विल बी इन द कोर्ट. एक्यूज मीन यहाँ पे हो गया, एक्यूज नर्सिंग हो गया, एविडेंस चल रही है, ही विल बी. पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर, इनका कोर्ट में होना जरूरी है. And when the judge enters, first duty goes to the public prosecutor. Public prosecutor पूरे केस को समझाएगा to the judge, along with the accused, along with the victim, along with the witness. कि आखिरकार ये केस है क्या, इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें FIR है, इसमें एक, अब जैसे नए लॉ में आ गया, इट इज नॉट नीडेड दैट द विक्टिम शुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रजिस्टर एन FIR. न्यू लॉ ये कहता है इवन अ ईमेल कैन बी सेंट टू द अथॉरिटीज एंड दे विल रजिस्टर देम. देयर इज नो नीड टू गो टू द पुलिस स्टेशन. तो जो भी इंक्वायरी के बाद तो पूरी फाइल बनी है उसके बारे में, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूटर. प्रोसिक्यूटर मीन्स द गवर्नमेंट लॉयर विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट to the victim, and he possesses the whole of the file in which that nurse or has been made accused of the offense of negligence. Then preparation of the evidence, section 308. Section 308 says that everything
that will be provided to the accused. All the material in that investigation which is in the file, that will be provided to the accused free of cost. उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में क्या चार्जेस लगाए गए हैं, नेग्लिजेंस का क्या आरोप बना है, वो एक कॉपी के रूप में उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी चीज उसी के साथ में, क्या मीडिएशन में कोई काम हो, क्योंकि अब एक मीडिएशन भी आ गया है। मीडिएशन का पर्पज ये है कि ट्रायल को आसानी से जल्दी उसको कंक्लूड कर दिया जाए। कंपनसेशन को लेकर हुआ है, विवाद हुआ है, लॉस है, जो विक्टिम है वो भी जानता है कि कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, इट इज नॉट द केस ऑफ मर्डर। एक नेग्लिजेंस हुआ है, नेग्लिजेंस में कोई मोटिव खराब नहीं था, वर्कलोड के कारण हो गया, किसी भी कारण से हो गया, एंड द थिंग विच इज बीन नॉट, दैट इज द कंपनसेशन। तो इसलिए अब इसको मीडिएशन के द्वारा भी इसको किया गया है। तो वहां ये भी होगा कि फाइल मीडिएशन को भेजी जाए, या मीडिएशन में एग्री नहीं हो पाए कोर्ट काउंसलिंग के द्वारा। होता है कई बार कि मीडिएशन में भी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है हमने 5 लाख कंपनसेशन मांगा था, नर्सिंग स्टाफ कहता है हम आपको 1 लाख रुपए देने की स्थिति में है, और मामला खत्म हो जाता है। दिस इज, बट satisfaction will be of the victim, satisfaction will be of the dependents of the victim. Next slide ma'am. How the witness will proceed, ये जो सेक्शन जो आ गया 310, how it will, then again when all the statements are being recorded, statement of the doctor, statement of the dependent, of the hospital, then audiatum pattern, that means that the statement of the accused will also be recorded. यहां पर लॉ ये कहता है when any of the statement of the accused will be recorded, accused को ओथ नहीं दिलाई जाएगी। अब आप देखिए फिर आ गया नेचुरल जस्टिस। हम ये जानते हैं कि accused को अगर कसम दिलाएंगे वो झूठी कसम खाएगा बचने के लिए, ये शास्त्र भी कहता है। सतम साठे समाचारित एक है ना, संस्कृत का है ना श्लोक है, तो इसलिए उसको ओथ से उसको एग्जेम किया गया है। एक्यूज अदालत में कसम खाकर बयान नहीं देगा, क्योंकि वो लॉ जानता है, कोर्ट जानती है कि ये कसम खाकर भी झूठ बोल सकता है, इसलिए उसको कसम से एग्जेम कर दिया गया। एंड लास्ट में द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज विल ऑल्सो बी टेकन, क्योंकि राइट टू बी हर्ड एंड ही शुड ऑल्सो बी हर्ड। जो एक्यूज के ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया है उसको भी जो है एक अवसर दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात क्या कहना चाहता है। और इसी को हम, ये आ गया ह्यूमन राइट कमीशन आ गया, और वो नेचुरल जस्टिस। सो दैट इज द विटनेस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 310 ऑफ द BNSS। फिर आगे जब ये स्टेटमेंट होगा, देन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का इसलिए कहा जाता है कि एनी ऑफ द स्टेटमेंट which has been given by the doctor, statement given by the dependents, वो सच है कि नहीं, then the accused will be given the time to cross examine. That is also the part of the natural justice. There are many cases of the Supreme Court where the accused has gone to the high court, that proper opportunity of cross examination was not been given. क्योंकि हम इस चीज पर बात करते हैं, जिस प्रिंसिपल पर बात करते हैं कि 100 गुनाहगार बच के निकल जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये डॉक्ट्राइन हमारा है। वी अडॉप्ट दिस नेचुरल जस्टिस डॉक्ट्राइन दैट नन ऑफ द इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड, दो मेनी ऑफ द मेनी कल्प्रिट्स एक्यूटल हो जाए। That's why this right has been given to the accused to cross-examination. And cross-examination will be made by the counsel of the defense. One thing more, section 205 of BNSS also said that this is the duty of the court to provide a lawyer to the accused.
If the accused says that I am not financially strong, that I can bear the expenses of the lawyer, now again, this is the duty of the state to provide the lawyer to that nurse. Because of then again, justice. The state will provide, और हम इसको कहते हैं amicus curiae. Amicus curiae को जनरल भाषा में आपने कहीं पढ़ा होगा, उसको लोग कहते थे friend of the court. Amicus curiae is being provided by the judge of the court, the person who is being paid by the state, but he is fighting the case to deliver justice to the accused. लेकिन ये तब होता है when the judge is satisfied that the accused is not capable financially to pay the expenses of the lawyer, then the state provides it. This is the basic structure of our constitution. Because when you talk to the preamble, we the people of India, the preamble doesn't say that I the citizen of India. We the people means matlab all the people of India. And you just see the word is people. People means citizen and non-citizen both. People doesn't mean citizen. Many of the people get confused that they talk because we are the citizen, so constitution applies on us. We are not the citizen, so the Indian. Every person who is on the land of India for some period or life period, he will be protected by the constitution. And go to the first line of the preamble, we the people of India. Then closing argument. After cross-examination, closing argument is being made. Closing argument means all the evidences are being completed, cross-examination is being made, and then the charges are being fixed. After all those evidences, all those statements, statement of the doctor, statement of the family members, statement of the accused, statement of the expert, even expert evidence can be also be called by the judge. If the victim says that the doctor is not sufficient, call the third person who is the expert of that thing. Even the court can call the expert. His statement can also be. Everything lies on the satisfaction of the judge, because at the last, judge has to deliver the judgment. Then it comes the part of the judgment. What the judgment is being pronounced. One thing more, that accused is being permitted. If the judge permits the accused that if any of the reason he is unable to attend the court, he can be represented on behalf of the lawyer of the accused. But in times of three cases, during the statement of the accused, number two, during the framing of the charges, number three, during the time of the judgment. All these three situations, it is mandatory for the judge that the presence of accused is mandatory. If the accused is absent, pronouncement of the judgment will be not be taken. If the accused is absent, framing of charges will not be made. And if the accused is absent, his statement cannot be recorded through counsel in the absence of the accusers. Can we proceed for the next, ma'am? When now we talk with the sections, criminal sections. The BNS Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, that was been passed by the Parliament in the year of 2023, that replaced the Indian Penal Code. The key provision which has been added, that is section 106. 106 of BNS says that if any of the negligence, formerly it was section 30A of Indian Penal Code. 304A ये कहता है, अगर किसी नेग्लिजेंस से उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, then section 106 of BNS that will be applied. The criminal section which will lie on that accused, that is 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, which was formerly of the section 30A of
Indian Penal Code in the case where during treatment by any of the negligence, the victim has died. Again here, the case is not of murder. Murder means where the intention to kill a person is there. Here, the intention is not to murder that person. Here, the negligence is being made, and because of that negligence, that patient has died. Then the case will be registered under 106 clause 1 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Can we proceed to the next, ma'am? So the major section with respect to the death, that is, then 125 BNS. 125 BNS has been taken that the act endangered the life of the person. The act endangered the safety of the person. If any of the injection which has been made that reacted, if any of the medicine which has been given disturbing the time period and by which the life of the person was been endangered. There are many cases हुए हैं कि जहां पर दवाई दी गई, वो दवाई का इस तरीके से उसको दी गई कि उसके फॉर्मुलेशन के साथ साथ जिस टाइम पीरियड पर देना था 4-4 घंटे की देरी में दी गई. ये इसके बारे में आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं. और वो पता चला डोज ज्यादा हो गया, जैसा भी हो गया, उससे पता चला किडनी पर फर्क पड़ गया, उससे पता चला लीवर पर फर्क पड़ गया. तो which endangering the life, that is section 125 of the BNS. And the punishment for this is 3 months of the punishment. And even the maximum punishment is imprisonment of life. Maximum punishment. और imprisonment life में अभी जस्टिस गांगुली का जजमेंट आ गया है. पहले चलता था कि आजीवन कारावास में 14 साल की सजा दे दी जाती थी. कि 14 इयर्स को डे एंड नाइट मान के कह दिया जाता था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया. जस्टिस गांगुली के जजमेंट में आ गया स्ट्रिक्ट उसका इंटरप्रिटेशन किया गया. इम्प्रिजनमेंट लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट होल ऑफ द लाइफ. अभी तक ऐसा कोई केस इंडिया में नहीं हुआ है, बट द लॉ स्पीक्स अप टू दैट लेवल. मैं फिर कह रहा हूं, इस लेवल तक का केस अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आया है जहां पर नेग्लिजेंस को लेकर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया गया. क्योंकि नेग्लिजेंस का जब इंटरप्रिटेशन किया गया तो वहां पर मेंसरिया देखा जाता है. मेंसरिया कहीं पर भी किसी भी स्टाफ का ये नहीं आया है कि उस नेग्लिजेंस से इतना लेवल हो गया. अगर मेंसरिया मर्डर का है तो फिर वो नेग्लिजेंस में केस आएगा ही नहीं. एंड नन ऑफ द केसेस हैज बीन अब तक ऐसा नहीं हुआ. Then when we come out to section 125A, these are the two sections again segregated for section 125, addressing simple injury, simple hurt. तो यहाँ पर सजा हो गई 6 months और फाइन. और 125B आ गया addressing grievous hurt. तो यहाँ पर आ गया up to the 3 years of punishment. 3 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल का जो है नेग्लिजेंस में आता है. Then this is the section. जब मैंने आपसे कहा टॉर्ट की जब हम अगर बात करते हैं, टॉर्ट में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. क्योंकि वहां पर एक नई थ्योरी आ गई लॉ ऑफ टॉर्ट का. वो कंज्यूमर हो गया है. कंज्यूमर क्यों हो गया है? बिकॉज ही हैज पेड. वो एक सर्विसेज लेने के लिए आया. कंज्यूमर ये कहता है दैट वन बॉडी इज गिविंग द सर्विसेज एंड अनदर बॉडी इज टेकिंग द सर्विसेज. तो जहां पर गिविंग एंड टेकिंग में अगर आ रहा है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो एक्ट है उसमें भी ये कवर हो गया. और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी नेग्लिजेंस को, नेग्लिजेंस ऑफ द नर्स, नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, नेग्लिजेंस ऑफ द हॉस्पिटल, उसको भी यहाँ पर जोड़ा गया है. दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल थ्रू डॉक्टर, थ्रू नर्स, एंड इफ दो सर्विसेज any negligent attitude has been taken resulting in the injury or any kind of damage, it also includes breach in duty. It also includes breach in care. Proper care has not been taken by the nursing staff or the hospital, which causes into damage. Definition is the same, but here Consumer Protection Act comes under the law of the tort, where the
purpose of the court is not to give punishment. Here the purpose of the court is to give compensation. That is the, और इसी को हम कह देते हैं सिविल लॉस. वहां हो गया क्रिमिनल लॉस, यहाँ पर हो गया सिविल लॉस. और ये यहाँ पर जियोपार्डी नहीं है. दोनों रेमेडी अकेले भी विक्टिम ले सकता है, दोनों रेमेडी एक साथ भी विक्टिम ले सकता है. In the one court, he has filed a case to punish that nursing staff, and on the same time, he has also filed a case for the compensation. यहाँ ये नहीं कहा जाएगा विक्टिम वो एक्यूज के द्वारा कि हमें एक ही कार्य के लिए दो सजा क्यों दी जा रही है. ये जियोपार्डी में नहीं आता. ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट में एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो वहां पर दो लोग हैं, एक हो गया ड्राइवर, एक हो गया गाड़ी का मालिक. तो ड्राइवर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, सजा मिलेगी, और दूसरी लाइबिलिटी हो गया कंपनसेशन. कंपनसेशन कौन देगा? जहां पर उसके जो डिपेंडेंट्स को जो लॉस हुआ है उसमें ड्राइवर देगा, उसमें गाड़ी का मालिक देगा. और इसीलिए वहां पर अप्लाई हो गया लॉ ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस एक स्टेट ने अलग से वो दिया है कि जहां पर ऐसी चीजें होती हैं वहां पर एक रेमेडी के तौर पर लॉ ऑफ इंश्योरेंस एक वो हुआ है कि जहां ऐसी चीजें हैं तो वो इंश्योरेंस. और आपके यहाँ भी आपने भी देखा होगा हॉस्पिटल्स भी इंश्योरेंस कराते हैं, इवन मेडिकल इंश्योरेंस भी होने लगा है. ओनली पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द पर्सन एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनसेशन इन द damages. Can we proceed to the next name? Then again, I am talking with the some of the judgments of the Indian courts and some of the judgments of the civil court, वो foreign court. तो हम अगर उनकी अगर बात अगर करते हैं केस की अगर हम अगर बात अगर करें तो जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दिस इज द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड इन विच द कोर्ट गेव द ऑब्जर्वेशन दैट नॉट एवरी फेल्ड ट्रीटमेंट इज अ नेग्लिजेंस. क्योंकि सबसे पहला कोर्ट का काम यह है, व्हेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी बात को रखेगा वहां पर यह देखा जाएगा ये मामला नेग्लिजेंस का है भी कि नहीं है. कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके बारे में साइंस ये कहती है कि ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे सकती हैं, इनका साइड इफेक्ट है, एंड द साइड इफेक्ट हैज बीन एक्नॉलेज्ड टू द पेशेंट. सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. कि तो वहां पर ये आया कि एवरी फेल्ड ट्रीटमेंट, ये जरूरी नहीं है कि वो नेग्लिजेंस का हो. प्रोफेशनल नेग्लिजेंस मस्ट बी प्रूव्ड बाय द एक्सपर्ट दैट इट इज नेग्लिजेंस. दूसरे अगर हम अगर केस को अगर देखें तो अशुतोष हरि भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है. यहां पर यही चीज कही, सर्जिकल गजेट लेफ्ट इनसाइड द पेशेंट. ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में जो भी यूज करने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उनमें से कोई इंस्ट्रूमेंट शरीर के अंदर छूट गया और स्टिचिंग हो गई, वो ध्यान नहीं दिया गया. यू पीपल यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड. आपको मालूम भी होगा कि ऑपरेशन में कितने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से एक आधी चीज अगर शरीर के अंदर अगर छूट गई, इसे कोर्ट ने नेग्लिजेंट माना. एंड दिस इज द नेग्लिजेंस ऑफ नॉट ऑफ द डॉक्टर, दिस वाज द नेग्लिजेंस ऑफ द नर्सिंग स्टाफ. डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसके बाद वो डायरेक्शन दे के चलो स्टिचिंग वगैरह बाकी सारी चीजें वो सब देखना जो है नर्सिंग स्टाफ, इसको जो है वहां पर नेग्लिजेंट माना गया. एक के अगर हम अगर देखें, सविता वर्स वर्सेस सविता गर्ग वर्सेस नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट,
patient died due to alleged negligence, burden of proof can shift to the hospital. जो नेग्लिजेंस है वो नेग्लिजेंस साबित कौन करेगा? नेग्लिजेंस को साबित करने की जिम्मेदारी है जिसने आरोप लगाया है, यानी डेड पेशेंट और द डिपेंडेंट ऑफ डेड पेशेंट. एक्यूज को नर्स को ये साबित नहीं करना है कि उसने नेग्लिजेंस नहीं किया है. ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेशनल अचीवमेंट प्रोफेशनली ये मानकर किया जाता है. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जहां मैंने आपसे कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर, वहां पे पहली लाइन ही ये चीज कह दी जाती है, ये नेग्लिजेंस हमने नहीं किया है, हमारे ऊपर गलत आरोप. ये आप इसको कह दीजिए कि प्रोफेशनल आउटकम है. लेकिन हम अपने यहाँ चलते ना लॉ ऑफ इनोसेंस. लॉ ऑफ इनोसेंस का मतलब क्या है? हर व्यक्ति न्याय के सामने जो है इनोसेंट है. इनोसेंट मानकर चलते हैं कि ही इज इनोसेंट. वो कितना भी बड़ा विक्टिम है, ही इज इनोसेंट इन द आई ऑफ लॉ. नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन का मतलब कौन हो गया? विक्टिम. ही हैज टू प्रूव इट. और वहां पर प्रोसिक्यूशन में इसीलिए हॉस्पिटल को भी जोड़ा गया, क्योंकि हॉस्पिटल वहां पर किसकी तरफ से खड़ा था? हॉस्पिटल खड़ा था वहां पर डॉक्टर के साथ, और वो लोग खड़े थे जो कि आरोप लगाने वाले थे कि नर्स की लाइबिलिटी से हुआ है. तो दैट लाइबिलिटी, इसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ. लॉ की लैंग्वेज में वी से कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द हेड ऑफ द prosecution. Prosecution has to prove that the negligence has been committed, and because of that the loss is. Accused nurse has not to prove it. वो डिफेंस में अपनी बात को क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात कह सकती है कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, हमें गलत तरीके से फंसाया गया है, हमारी नेग्लिजेंस नहीं है. स्प्रिंग मीडो हॉस्पिटल वर्सेस हरजोत आलूवालिया, इस केस में भी आ गया. Nurse administered wrong injection, gross negligence, hospital liable for the heavy compensation. इस केस में क्या हुआ? वो जो प्रिस्क्रिप्शन था, प्रिस्क्रिप्शन किसी दूसरे डॉक्टर का, किसी दूसरे पेशेंट का था, और उस प्रिस्क्रिप्शन में नेग्लिजेंट तरीके से उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करा दिया गया किसी दूसरे पेशेंट की. और इसीलिए उसमें डॉक्टर इसलिए बचे क्योंकि वहां पे आरएस का मतलब that the order is being given to a specific patient. और अगर वो स्लिपी अगर बदल जाएगी, ए के लिए कोई स्लिप बनाई गई, उसको अगर अप्लाई कर दिया जाएगा बी पेशेंट के लिए, तो इसे जो है उस नर्स का उसे जो है स्ट्रिक्ट नेग्लिजेंस माना गया और इसमें जो है कंपनसेशन दिया गया. देयर आर सर्टेन फॉरेन जजमेंट्स आल्सो. ब्लोम वर्सेस फ्रेड हॉस्पिटल, यहाँ पर भी आ गया. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स not negligent if acting according to the expected medical practices. अमूमन कभी कभी कह दी, जैसे हमारे यहाँ आ गई वो, हम लोग क्या कहते हैं, जो गांव में जो दाई होती हैं, दाइयों को दो चीज आ गई फिर से, जो लोग डिलीवरी कराती हैं, अभी भी है ना दाई वर्ड इस्तेमाल होता. मैम दाई ही यस सर, दाई. यस. अगर उन्हें स्टेट ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है दैट दे आर एक्सपर्ट, तो ये कहकर उनके ऊपर नेग्लिजेंसी का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि डिलीवरी दाई से करा दी गई, दाई लिटरेट नहीं है, बिकॉज द स्टेट हैज परमिटेड. और स्टेट अगर परमिट कर रहा है तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, उनकी क्वालिफिकेशन या उनके एक्सपर्टनेस को जैसे. तो ये एक फॉरेन का जजमेंट है जहां पर कि ये कहा गया कि इट विल बी नॉट इफ दे आर बीन परमिटेड. देन देयर इज वन आल्सो को रोज वर्सेस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ. Negligence judge based on knowledge available at the time, not hindsight. फिर वही चीजें आ गई. That overall head of the court, that is the judge. और बेसिक चीज है, both the counsel of the prosecution, public prosecutor, and the counsel of the defense, दोनों को white hands के साथ कोर्ट के सामने आना चाहिए. और इसीलिए there is a provision. If there is any grievance against the judgment, the victim or the dependents, they have got the right to make a revision in the superior court or appeal in the superior court. क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं
कि न्यायालय में आदमी बैठा हुआ है, आदमी के पास जितना भी ज्ञान है, हमने कभी, हमारा इंडियन लॉ कभी मान करके ये नहीं चलता है कि हर व्यक्ति के पास में सर्वोच्च ज्ञान है। हम ये मानकर चलते हैं कि हर व्यक्ति लर्निंग प्रोसेस में है। अगर उसके द्वारा जजमेंट से किसी को भी अगर ग्रीवांस है या सेटिस्फेक्शन नहीं है, he can make a appeal to the superior court, he can make a revision in the superior court. Can we proceed with the next? I think that next slide is related to the questions. Yes. Now it is open. Anybody of you can any question, बिल्कुल freely होकर आप मुझसे किसी हिंदी में, अंग्रेजी में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. And again, I am very much thankful to the Manisha ma'am that you have gave me this platform that I am directly making interaction with both. Yes. Thank you, sir. Afternoon, sir. Come. Yes, Sonu Kumar. Yes. सर, जैसे आपने बताया कि जो नेग्लिजेंस हो रहा है, आज के समय में ऐसा होता है सर कि पेशेंट अगर कुछ एलिगेशन लगाता है डॉक्टर पे या नर्स पे, तो अब खासकर प्राइवेट सेक्टर में कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर होते हैं, वो मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए स्टाफ का मैंने पक्ष न लेकर पेशेंट का ही पक्ष लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए सर? आप ये चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, यस सर. अगर मुझे उन शब्दों का इस्तेमाल अगर मैं ना करूं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये हॉस्पिटल्स, मैम अदरवाइज मत लीजिएगा, सर्विस प्रोवाइडर ना माना जाए, उनको इनकम बेस्ड है ना ऑफिसर्स माना जाए. उनका पर्पस रहता है टू जनरेट इनकम. सर्विस प्रोवाइडर उनका एक होना चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं करता है. सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा, लॉ डजंट परमिट इट, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में हमने कई चीजें ऐसी देखी हैं. सबसे पहला काम, अपनी गलती को मान लिया, नर्स को सस्पेंड कर दिया, नर्स को टर्मिनेट कर दिया, बल्कि उसकी कोई गलती नहीं है. इसीलिए ही प्रोबोनो बनाया गया है, इसीलिए लीगल एड सेल बनाई गई है कोर्ट्स में. अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द जज, एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लीगल एड सेल में जा सकता है, वहां अपनी पूरी चीज को कहकर वहां से एक लॉयर हायर कर सकता है. इसीलिए बनाया गया, जिसको हम कहते हैं खूब अदालत ही नहीं कर, न्याय चला निर्धन से मिलने, उसका टैगलाइन है. क्योंकि मैम अमूमन कौन विक्टिमाइज होता है? उस सिस्टम में जो सबसे कमजोर विक्टिमाइज होता है. और मुझे कहने में जरा सा भी ये नहीं है कि इस हॉस्पिटल के पूरे सिस्टम में सबसे कमजोर अगर कोई है तो वो नर्सिंग स्टाफ हो जाता है. हॉस्पिटल जानता है डॉक्टर के बगैर मेरा हॉस्पिटल चलेगा नहीं. वो डॉक्टर को, अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो देन आई एम सॉरी फॉर इट. नो सर, ये ट्रुथ ही है सर, जो प्रैक्टिकल है बात ये नहीं सर, है. you are बुक में right. हम लोग जो बुक में अलग कुछ दिया है कि डॉक्टर को नहीं करते, बट जनरली हाँ. अक्सर हमेशा नर्सिंग स्टाफ को ही ब्लेम नर्स किया सबसे जाता है. कमजोर कड़ी हो जाता है यस सर. पूरे उस सिस्टम में, सबसे कमजोर कड़ी. और अगर वास्तविक में अगर देखा जाए तो वो नर्स ही सबसे ज्यादा, मतलब वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सक्सेस के लिए उसी की ही सबसे ज्यादा सर्विसेज होती है. मैंने कभी नहीं देखा किसी नर्स को कि लाउडली बात करते हुए डॉक्टर की, मतलब उस, अब आप मेरी बात अगर मैं कह दूं, वो इसीलिए उसको सिस्टर बोला गया. अगर है ना, नर्स को आज यस सिस्टर इसीलिए उसको बोला गया कि उसकी ड्यूटी नहीं है, उसका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो इमोशनली एकदम उनके साथ में एकदम जुड़ जाती है. मेरे यहाँ भी नर्सिंग कॉलेज है, मैं अक्सर वहां पे लॉ के लेक्चर देने के लिए, तो मैं वहां पे मैंने कहा जरा सोचो क्यों सिस्टर बोला जाता है. एक इमोशनल अटैचमेंट के लिए बोला जाता है, दवाई सिस्टर दे रही है, लेकिन बात फिर वही आ गई. तो इसीलिए लॉ के दायरे में लीगल एड सेल हर जिले में है. अगर कहीं ऐसी चीजें आती हैं, देन फ्रॉम दैट प्लेस द रेमेडी कैन बी टेकन टू द नर्सिंग स्टाफ. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. और जिसको कुछ भी पूछिए. अनिल सर, Yes. डॉक्टर मिदुकुरी डीन नर्सिंग. यस यस मधुप्र जी. हाँ सर, आपकी क्लासेस बहुत अच्छा था. जो ये नया टॉपिक है, तो इसमें एक दो चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ. जब आपने ये चीज सभी चीज बताया है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज हम लोग ध्यान रखना है. आपकी क्लासेस से जो सभी लोगों को ये नॉलेज मिला है, जो हम लोग प्रॉपरली रॉन्ग ड्रग जो होते हैं उसको, कोई भी चीज को हम लोग ऐसे नहीं करना है. एंड ऑल्सो प्रॉपर
स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, प्रॉपर Yes. डॉक्यूमेंटेशन करना है, Yes. देन ओनली हमारी जो कोई भी नेग्लिजेंस होगा तो हमारी हाथ से नहीं हुआ तो भी हम लोगों को कोर्ट में प्रूव कर सकता है। यस, आप देखिए जो मैंने पहला केस बताया वो मैंने इसीलिए लिखा कि दैट एवरी केस इज नॉट अ नेग्लिजेंस। या हर केस में अगर मान लीजिए दवाई का रिएक्शन हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नर्स की गलती है, वो दवाई 3 घंटे की देरी में देना चाहिए था, वो 2.5 घंटे में दे दी गई, उसी के कारण डेथ हो गई। और इसीलिए आप देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ हैज बीन शिफ्टेड ओवर द प्रोसिक्यूशन। जिसने आरोप लगाया है उसके ऊपर बर्डन है, इसीलिए बर्डन दिया। एक्यूज के ऊपर, नर्सिंग के ऊपर ये बर्डन नहीं है कि उनको साबित करना, उनको हनुमान जी की तरह सीना चीर के दिखाना पड़ेगा कि देखो हमारे अंदर राम बसे हुए हैं। नो, जिसने आरोप लगाया है उसे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि इस नर्स ने नेग्लिजेंस किया। अब जैसे अभी जो मैंने एक फॉरेन ऑब्जेक्ट वाला आपको एक केस दिया था, फॉरेन ऑब्जेक्ट में आ गया था कि ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने किया, उसके बाद डॉक्टर चला गया, नर्स ने स्टिचिंग के समेत नेग्लिजेंस कर दिया, वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर रह गया जिसके कारण बाद में जो भी है ना वो इन्फेक्शन हुआ। दैट इज द केस ऑफ नेग्लिजेंस। बहुत बहुत बारीक लाइन है केस ऑफ नेग्लिजेंस एंड दिस इज द केस ऑफ नॉट नेग्लिजेंस, दिस इज एनीथिंग एल्स। इट मे बी द साइंटिफिक, इट मे बी ऑफ द कई चीज, मतलब उस मामले में तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, कई पेशेंट के अंदर इतना ज्यादा इम्यूनिटी नहीं हो पाती है कि वो दवाई नहीं असर कर रही है। बहुत से ऐसे कैसे कि हमने इतना पैसा लगा दिया, हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो वो सब नेग्लिजेंस में नहीं आएगा। और अब है ना कोर्ट भी, लॉ भी अब इस चीज को महसूस कर रहा है, इस चीज को देख रहा है कि जिस तरह से चीजें आ गई हैं उस हिसाब से जो सबसे कमजोर कड़ी है उसे भी कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जी, इट्स अ नाइस क्लास सर, बहुत अच्छी नॉलेज हम लोगों को मिला है। थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें अवसर दिया है। और मैंने मैम को मैंने कहा भी था कि मैम मैं यही चाहूंगा कि सेशन में सबको ये लगे कि मैंने आपके के सारे सवालों का जवाब मैंने दिया है। कुछ है ना टेक अवे पॉइंट्स होते हैं तो कम से कम टेक अवे पॉइंट्स वो जो है, मैम का आग्रह था, मैं इसको ठुकरा नहीं पाया। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से बिल्कुल पूरा करूं। और रात में मेरे मैंने 12 बजे मैंने आपको पीपीटी मैंने भेजा। यस सर, एग्जैक्टली। बच्चे सीरियसली, क्योंकि नया टॉपिक था और इवन होता है यूजुअली हम लोग के साथ भी यही है कि सर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों को। जी 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 जी, कि हमारे नर्सिंग में भी बोला जाता है ना, हमारे 5 C's होते हैं भाई, हमें सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। हाँ, बट क्या होता है कि जल्दबाजी में कि हाँ टाइम जो मैनेजमेंट हम प्रॉपर से नहीं करने की वजह से सर नेग्लिजेंस हो जाती है। ये तो क्योंकि हम लोग भी हॉस्पिटल में जॉब किए तो वो सारी चीजें होती हैं सर। मैम एक मेरा बच्चा है, उसने पीएचडी किया हुआ है हेल्थ लॉस के ऊपर, तो मैंने एक चैप्टर नर्सिंग उसमें भी उसने कहा कि सर मैंने ये पाया ना कि कोई भी नर्स जानबूझ के नेग्लिजेंट नहीं होती। मैंने कहा इसीलिए उसको सिस्टर कहते हैं। कह रहे सर वो लोड हो जाता है, वर्क लोड इतना है कि यस सर, वर्क बर्डन की वजह से ही ज्यादातर नेग्लिजेंस होने का मेन वजह यही है। नाइट ड्यूटी लगा रखी है, अब उसमें भी अब नींद मैम आती है, नींद बुलाई नहीं जाती है। और आप कितना भी नींद को अवॉइड करो, अगर आप थके हुए हो तो नींद आएगी। नींद आएगी ही सर, नींद आएगी। और गुस्सा कभी आता नहीं है, गुस्सा मैम निकाला जाता है कभी। और इसी इज द डिफरेंस। बच्चे मुझसे कहते हैं, मैंने जब से क्लास में गया तो मैं गुस्सा हुआ तो बच्चे सर देखो आपने कहा है कि गुस्सा निकाला जाता है, आप देखो आप हम पे गुस्सा निकाल रहे हो, आपको गुस्सा आ नहीं रहा है। तो वो गुस्सा जो है हमेशा अपने से कमजोर पे निकाला जाता है। जैसे अभी सोनू जी ने जो अभी कहा कि कुछ हुआ और सबसे पहले जो है नर्स को जो है वो इफेक्ट किया गया, ब्लेम करते हैं। हाँ, बस वो सबसे कमजोर है इसलिए मैनेजमेंट ने उसके ऊपर गुस्सा उतार दिया। यस, एनी क्वेश्चन इफ एनी ऑफ यू वांट टू नो, कोई भी चीज आप जानना चाह रहे हैं। अब वो बीइंग अ प्रोफेसर है ना, अंदर से है ना प्रोफेसर वाला भाव आ जाता है, तो ये आता है ये सब बच्चे बैठे हुए हैं। नहीं सर, देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी से भी सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं। यस यस यस, ये चीजें मैंने अपने स्कॉलर को कहा, मैंने कहा एक जरा रिसर्च करके आओ, यहाँ देहरादून में जितने हैं 12-15 हॉस्पिटल, यू मेक अ सर्वे और वो
तब फिर उसने ये चीज निकाल के दिया कि सर नेग्लिजेंस नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द ओवरलोड, थकान हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब एक केस था उसका, क्या कहते हैं, ये था पाँव को, वो नर्स बेचारी सो गई, और उसे यूरिन के लिए जाना होगा, उसने आवाज लगाई, नहीं सुना, वो खुद ही उठकर चल दी, अब फिसल गया। तो अब उसमें बात हो आ गई कि इसकी वो जो है ना, अटेंडेंट बाहर सो गया वो जो है। अब लॉ के आई से अगर आप देखोगे, दिस इज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस। लेकिन अगर पेशेंट की भी देखा जाए, पेशेंट भैया जब तुझे कहा गया है बेड रेस्ट, तो तू रात में क्यों तो उठ के चल दिया यूरिन के लिए। तो ऐसे केसेस बड़े मतलब, और यही है जज का काम, टू गो विद द डेप्थ ऑफ द केस, कि नेग्लिजेंस को साधारण तरीके से नहीं मान लेना है। क्योंकि वही होता है ना सर, माइनर मिस्टेक्स जो होती हैं या फिर माइनर चीजें जो हम छोड़ देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो सही व्यक्ति को पनिशमेंट मिल जाता है, गलत व्यक्ति बच जाता है। ये तो फैक्ट है सर। यस यस मैम, हम तो खुद मान कर चलते हैं कि इसीलिए तो आप देखिए एमिकस क्यूरी का प्रोविजन क्यों आया, क्योंकि वो व्यक्ति गरीब है, वो आदमी हाई लॉयर नहीं नहीं अफोर्ड कर सकता वो, तो वो इफेक्ट कहाँ होगा, वो इफेक्ट उसके साथ हो जाएगा वगैरह। और जज भी कुछ, बिकॉज ही हैज टू गिव द स्पीकिंग ऑर्डर। अगर उस फाइल में उसके खिलाफ अगर नेग्लिजेंस निकल रहा है, तो वो ऐसा थोड़ी करेगा कि मेरा मन नहीं मान रहा। जजमेंट इज नॉट बीन गिवन बाय द सोल, मन से नहीं होगा। यस मनीष जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? महेश जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम। सर पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी आपको, लाइक अपने मतलब बहुत मतलब टाइम निकाला। थैंक यू मत बोलिए, थैंक यू मुझे बोलने दीजिए। कल ही लौट कर आए, उसके बाद भी आपने लाइक एक शॉर्ट प्रिसाइज टाइम में आपने सब हाँ, वो 2 दिन का हो गया। एक जगह बीएस में जाना था, मैं लौट के ही आया, 8-8:30 बजे पहुंचा। फिर मैंने 8:30 बजे कहा था मैम अब मैं बनाकर भेजता हूँ, मैं बनाकर। जी सर। और मुझे लगता है कि मतलब ठीक ठाक हो गया होगा प्रेजेंटेशन। हाँ, लाइक बहुत अच्छा था, और लाइक जिस हिसाब से आपने प्रेजेंट किया ना सर, क्योंकि मैं भी, हम लोग पढ़ते हैं, चीजें बहुत सारी हैं कि लॉ की बुक्स तो हम लोग उतनी नहीं पढ़ सकते, पर हाँ जो थोड़ी बहुत हम लोग को नॉलेज है, तो स्टूडेंट्स भी, और आई थिंक बहुत सारे ऐसे मतलब वेल एक्सपीरियंस्ड मेरे से भी सीनियर लोग यहाँ पर हैं, मिदु कुरियन सर हैं, देन एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग। मैं अभी पिछले संडे को आई वेंट टू लेबासना में कुछ चीजें, आपका शायद इंटरव्यू भी वायरल हुआ था, मैंने देखा था। हाँ, तो वो लेबासना में मैंने देखा मैम आईएएस जो है आज की डेट में, बल्कि मैंने आके लॉ में आके मैंने गुस्सा भी है ना किया, 40 में 36 वर फ्रॉम द इंजीनियरिंग IITs, जो कि आईएएस क्रैक करके आईएएस में, 4 वर द MBBS डॉक्टर, मुझे लॉ का एक भी नहीं था। तो गुस्सा आ गई, मैंने कहा इसमें से लॉ का एक भी नहीं है। बट मैम द वे दे हैव रिस्पॉन्डेड, कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये MBBS के बच्चे ये मतलब दे इतना डीपली लॉ को जानते हैं। ये तो मैम लॉ इज अ सब्जेक्ट, जब लॉ के लिए कोई बेस की जरूरत नहीं है। लॉ आप जब भी पढ़ने लगेंगे आप, लेकिन बस ये है कि आपको अंदर से पैशन लाना पड़ेगा, एक थोड़ा सा ना इंटरेस्ट। लॉ पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि सेक्शंस उसके ऐसे हैं, लाइक ABCD करके हैं, तो हमें पेशेंसली उसको पढ़ना है, उसको समझना है। यस अंडरस्टैंडिंग है वहां पर। उसका जो ब्लूम में जो आता है ना, उसमें 2 जगह सब, एक तो अंडरस्टैंडिंग आ गया और एनालाइज आ गया। एनालाइज इट एंड अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड इट एंड एनालाइज इट। क्रिएट नहीं है वहां पर कुछ। हाँ, क्रिएट आपके यहाँ आ जाता है, नर्सिंग में वहां पर आ गया। हाँ, क्रिएट हमारे आ जाता है, लॉ में नहीं आता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है भाई, जो बन गया सो बन गया, उसको हाँ क्या कर सकते, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम बस। हाँ, वो भी तब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें, बट हम लोग में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, हम लोग चेंज कर सकते हैं उसमें। यस यही चीजें हैं, बस पढ़ते पढ़ते इतना ज्ञान आ जाता है, आपके साथ शेयर कर देते हैं। हाँ सर, नहीं मैं कोशिश में यही रहूंगी कि सर इन फ्यूचर भी आपके साथ बहुत सारे लाइक जब भी करेंगे डेफिनेटली सर। ओके, किसी को अगर और कोई क्वेश्चंस पूछना है तो देखे ना आस्क सर, बिना संकोच के। सब्जेक्ट मैम सबसे पहले तो मैं मनीषा मैम आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि
से टाइम लेकर हम लोग के लिए अच्छा नेग्लिजेंस के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि हम लोग बहुत डर जाते हैं कभी, या हम लोग अभी जैसे मैं कॉलेज प्रोफेसर में हूँ मैम, नर्सिंग ट्यूटर के रूप में, तो अगर कोई टीचर को मैं स्टूडेंट के बीच कुछ बहस हुआ तो अक्सर मैनेजमेंट मैंने किसी एक का पक्ष सुनते हैं, और वही चीज़ हॉस्पिटल में होता है, नर्सिंग स्टाफ के साथ मैंने एक तरफा एक तरह से एक मैम डिसीजन लिया जाता है। जी तो खैर अब हम लोग जान गए हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने कलीग्स को भी ये नॉलेज जरूर देंगे, और आगे भी अच्छा टॉपिक के साथ मैम एक प्रेजेंटेशन सर के साथ एक और करिएगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। है मैं सारी चीजें रिकॉर्डेड शेयर करूंगी आपको सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि क्या होता है ना सोनू जी, आपको पेशेंटली पहले सारी चीजें सुननी पड़ेगी, फिर समझनी पड़ेगी, तभी कहीं जाके हम रिस्पॉन्स करें चीजों के लिए, क्योंकि ना बिना सुने, बिना दोनों पक्षों की बात सुने अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना, तो वही हो जाता है कि फॉल्ट जिसका नहीं रहता वो फंस जाता है अक्सर। बॉडी एटम पैटर्न ही ये कहता है दैट राइट टू बी हर्ड, और जब वो राइट टू बी हर्ड आया मैम, तो वो ये फिर दोनों के लिए आ गया। दोनों के लिए आ गया। रेमेडी शुड बी प्रोवाइडेड टू बोथ, चाहे विक्टिम हो चाहे कल्प्रिट हो, दोनों के। यस 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 यस, चाहे विक्टिम हो चाहे कल्प्रिट हो। अब कल्प्रिट के इमोशंस होते हैं कि ठीक है, मतलब लॉस हुआ है, किसी का भी हो जाए तो लॉस तो हुआ, वो तो है, लेकिन पर कभी कभी होता है ना सर, जो कल्प्रिट बनता है वही विक्टिम होता है। यस 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 यस, वही मेन चीज होता है कि फाइंड करना। मैक्सिमम हो जाता है। हाँ, मैक्सिमम केसेस में यही होता है, क्योंकि हम तो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि इंटेंशन वहां पर होगा। हॉस्पिटल में मैम जो उस फील्ड में जाएगा, हम तो ये मानकर चलते हैं कि लॉ का बंदा फिर भी रिजिड हो सकता है, अंदर से कठोर हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल का बंदा कभी कठोर हो नहीं। वो क्योंकि कंटिन्यूअसली 12 आवर्स के बाद फिर आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट करने के बाद सर जो वर्कलोड आता है ना, लिटरली बहुत गंदा वाला वर्कलोड आ जाता है। और स्पेशली सर कहीं तो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स हॉस्पिटल्स में तो सर ये है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो है। यस, क्योंकि बच्चा अगर जब 8, 9, 10th में है, जब वो बच्चा किस तरफ मूव कर रहा है, जहां उसका मन कर रहा है, अगर वो सॉफ्ट है तभी वो जा रहा है मेडिसिन की तरफ। ये चीजें, बट आफ्टर लॉ इज लॉ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम पनिशमेंट 3 years का हुआ है, कंपनसेशन में ही हो जाता है, और मीडिएशन इसीलिए इसमें लागू है। अब तो पहली स्टेज में ही आ गया कि एनी ऑफ द कोई केस है नेग्लिजेंस का, उसे आप मीडिएशन में भेज दिए, कंपनसेशन डिसाइड हो जाए, कोर्ट में लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मीडिएशन में इसीलिए द वेरी फर्स्ट स्टेप जो है लॉ में, अब उसको मीडिएशन में उसको रख दिया गया है। कोर्ट में केस बाद में आएगा, पहले मीडिएशन में भेज दो। अगर वहां नहीं हो पाता है, हाँ, वहाँ टैकल नहीं हो रहा, हैंडल नहीं हो रहा, देन वी विल गो टू द कोर्ट। चलिए मैम, बहुत बहुत आपका थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू टाइम देने के लिए हमें। धन्यवाद सर। गुड डे एवरीवन। Yes, have a nice day, have a nice Saturday, and tomorrow is Sunday. Nice, happy weekend to everyone.